responsible? The MCD, the government, the coaching institute, or we as a society have failed them? राइट टू डेथ ज़रूर अवेलेबल है ओल्ड राजेंद्र नगर में. इट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन. पर मैंने कभी अपने नाइटमेयर में भी नहीं सोचा था कि ये एक्चुअल मतलब लिटरल बॉडीज़ का बेसिकली ग्रेवयार्ड बन जाएगा. What do you want to say on this? मैम वी ORM स्टूडेंट्स एवरीवन हु हैज़ बीन हियर सिंस 3 days सबका एक ही मांग है. ये एक मिसहैप हुआ है जो कि सामने आया है. बाकी यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही है. ये स्टूडेंट्स को यहाँ बैठना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के ओनर्स और कोचिंग के जो ओनर्स है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू अस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आवर लाइफ्स. ऐसा नहीं है कि वो बच्चे रोड पे चल रहे थे और दे मेट देयर डेथ. वो पढ़ रहे थे, वो बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे. ये एक लाइब्रेरी नहीं है जो बेसमेंट में थी, यहाँ की सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में हैं जो कि अभी लॉक कर दी गई हैं. बट वी ऑल नो क्या वो सारी बेसमेंट की लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद करने को तैयार है? यहाँ पर ब्रोकर्स ओनर्स बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं. ब्रोकर 21 दिन का एग्रीमेंट कराता है. दिस इज़ ऑल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टूडेंट्स. वी आर स्टैंडिंग हियर, वी आर सिटिंग हियर ऑन द 4th डे बिकॉज हमें पता है कि अगर हम वापस गए ये हमेशा चलता रहेगा. What do you think? What action should be taken about this situation? First of all, the MCD should come up with a regulation that has to how the buildings should be constructed here, because as of the information that we have here, the basements are not supposed to run for the libraries and all, and these are not meant for the commercial activities. However, they are running it for decades now, and these water stagnation issues and also this is something very persisting here, and we have been seeing it for last 2-3 years. And even our faculties also these days they are also complaining that even they themselves also witnessed it when they came here in Delhi in 2010 2012. So it's a very persisting problem and they are not coming out with any solution. I think 4-5 days back there was this incident in Patel Nagar wherein a student was supposed to write mains this year, so he also succumbed because there was this iron gate which was bearing electricity, so he was electrocuted and he died. He was found dead, and then within the span of 3-4 days this incident happened in old Rajendra Nagar as well. So it's very fearful. So this is very frequent. It's very frequent. These water stagnation issues and all these are very frequent. Even if it is raining for even 10-15 minutes, then you would find that there is shallow water in the street and you cannot walk. So these kind of issues that we have been facing, and even though we are complaining, sometimes there is this water issues as well. So if we are complaining to the authority, we are not getting actually any sort of resolution from their side. So this is something very persisting here and very troubling for the student community. So is this the same thing about the PGs and hostels? See, here what I feel is everybody is so exploitative in nature when you come down to Delhi. So, like, the first thing is the broker, then there's landlords and all. But You just said that the national capital is Yes. exploitative in nature. Exactly. And they are just behaving as in, they are actually seeing you as a commodity. They are seeing you as a something that they can just make business out of you. So they are just dealing with you on that way. So there's this broker, there's this landlords, and also everybody is just exploiting you. Even though libraries are also very exploitative in nature, but when it is a situation when you are in trouble, so nobody is actually coming out to helping you out in this situation. So this is something very troubling and very very grave also for the students community here. And moreover, one thing is that we don't have the political rights. We are not people who are going to vote actually in the MCD elections also. I think this is one of the reasons why they are not listening us, our concern as well. Now we have with us a professor. Let's know what he wants to say on this situation. 3 of our students basically died due to the flooding of a basement, and I'm here basically standing on this road which is called as the Big Bada Mazar Marg of the old Rajendra Nagar to highlight the issue, to probably support the students in their call for the justice, and hopefully one way or the other administration can probably respond to them, probably take an action for the people responsible for it, and the myriad number of the problems which the UPSC students face here. Like now actually we have a chance maybe to probably highlight those also. So वहाँ जहाँ हम आवाज़ें सुन रहे हैं, वहाँ आप विजुअल्स देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जहाँ बच्चे नाउम्मीद बैठे हैं. ये वही बच्चे हैं जो आने वाले वक्त में इस देश को सर्व कर रहे होंगे एज अ सिविल सर्वेंट. उन बच्चों की यहाँ
क्या कंडीशन है। सिर्फ कोचिंग की बात नहीं है, यहाँ जागरण इंग्लिश ने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट किया है। घंटों से हम यहाँ पे बच्चों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ कोचिंग की बात नहीं है सर, ये बात है जो बच्चे पीजीज में यहाँ रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, वो भी जब ग्राउंड लेवल पे रह रहे हैं, नीचे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में जब वो बच्चे रह रहे हैं, उनके घरों में गटर का पानी है, वो कैसे जी रहे हैं और कैसे वो इस कंडीशन में, अगर ये देश इस कंडीशन में उन बच्चों को रखता है, वो कैसे सर्व करेंगे इस देश को। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैम मैं बता देता हूँ, अगर हमारे ऑडियंस को नहीं पता है, ये ओल्ड राजेंद्र नगर नाम की जगह है। मैं कभी कभी मेटाफोरिकली ये बात कहा करता था कि दिस बड़ा बाजार मार्ग इज द ग्रेवयार्ड फॉर द एस्पिरेशंस। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, पीछे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमसीडी चोर है। जी हाँ, ये वही बच्चे हैं जो यहाँ इस देश को सर्व करने का सपना लेकर आए हैं। वो ये सपना लेकर आए हैं कि वो हम जैसे लोगों को, आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों को सर्व करेंगे आने वाले टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पे? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं पहले कभी कभी मेटाफोरिकली कहा करता था कि ये जो बड़ा बाजार मार्ग है, इट्स द एस्पिरेशंस, इट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन। पर मैंने कभी अपने नाइटमेयर में भी नहीं सोचा था कि ये एक्चुअल मतलब लिटरल बॉडीज़ का बेसिकली ग्रेवयार्ड बन जाएगा। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर आते हैं, 10 बाय 10 का कमरा मिलता है उनको 20,000 रुपये का। उसमें उसको ब्रोकयार्ड भी, उसको ब्रोकर भी बेसिकली हरास करता है, उनको लैंडलॉर्ड्स भी हरास करते हैं, उनको ढंग का खाना नहीं मिलता, 50-50, 40-40 रुपये के अनहाइजीनिक टिफ़िन खाने पड़ते हैं, सोनली फॉर दिस आइडिया कि वो 1 साल 2 साल मेहनत करके बेसिकली IAS बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, बस उनको बेसिकली पढ़ने दिया जाए। पर आई थिंक हम सबके सब, इवन द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड द MCD और द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर फेलिंग। अगर हमारे बच्चे मर रहे हैं, पिछले साल आग लगने की वजह से बच्चे मर गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, 1 हफ्ते पहले कोई करंट लगने की वजह से मर गया था, अब की बार बेसिकली पानी में बाढ़ की वजह से मर गए हैं, 3 महीने के बाद शायद किसी और रीज़न की वजह से मर जाएंगे। बट कोई तो कोई इस बात को एड्रेस करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग मच द स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर। यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए हमें ये भी पता चला कि कुछ NGOs से हमने बात की और हमें ये पता चला कि NGOs ने जब यहाँ के पार्षद के पास गए, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके पास गए, तो उन्होंने उनको ये बोला कि ये उनका वोट बैंक नहीं है, ये तो बच्चा बिहार का है ना, वो जो मरा वो बिहार का है, वो जो मरा वो कहीं और का है, वो यहाँ का वोट बैंक नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम पार्षद जी वैसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात एक्चुअली में ये सारे के सारे बच्चे देश के हर एक कोने से आते हैं, मतलब सिर्फ बिहार का नहीं है, केरल का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, मिजोरम का है, हरियाणा का है, जम्मू कश्मीर का है। तो क्योंकि ये दूसरे बेसिकली स्टेट से आए हुए हैं, अकेले रहते हैं यहाँ पे, मम्मी पापा हैं नहीं, तो जो भी मिलता है इनको बेसिकली इस रोड पे वो इनको एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे वोट नहीं करते ना, दिल्ली के वोटर्स नहीं हैं, तो शायद ओल्ड राजेंद्र नगर में या स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो शायद जो नेसेसरी डिसीजन मेकर्स हैं उन तक नहीं पहुँच पाती। सो ही इज़ राइट एक्चुअली, दे आर नॉट द वोट बैंक्स बट दे आर एटलीस्ट द वोट बैंक ऑफ इंडिया। क्या आर्टिकल 21 के हिसाब से उनको राइट टू लाइफ भी नहीं है? मैम राइट टू लाइफ है बेसिकली, राइट टू डेथ ज़रूर अवेलेबल है ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप किसी छोटे से कमरे में, किसी छोटी सी बेसमेंट में किसी दिन अगर पानी भर जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बेसिकली डेथ ज़रूर अवेलेबल हो जाएगी। राइट टू लाइफ हमारी बुक्स में है, इन सारे के सारे स्टूडेंट्स की किसी न किसी बुक के अंदर राइट टू लाइफ ज़रूर लिखा हुआ है, बट दैट राइट टू लाइफ इज़ बेसिकली ओनली अवेलेबल इन द बुक, probably not in the old Rajendra Nagar.